Hello dear students. Now come to very interesting applied part and bit difficult, which is based on the theory which we have discussed till now. हमने अभी तक जो theory discuss की उसका applied part वो कैसे आगे जाके हमको अलग अलग diversified fields जिसमें हमको ये चीजें काम में आएंगी. Right? So now the lesson is really taking a shift wherein we are discussing that this is what is the genetic material, right? It is working like this, and because of this type of working, so many areas of the life are affected. So how to regulate those different areas? It may be financial, it may be genetic disorders, it may be agriculture, it may be food industry, right? Which is based on the expression of the gene. Okay, so it might be a bit confusing for you. See, how come food industry? See, you may develop an organism which gives you flesh, which gives better quality of flesh, more flesh. You may develop a yeast which gives you better quality of alcoholic beverages. You may develop a yeast which gives you good quality biscuits, pizzas for fermentation. You may develop an organism which gives you better quality antibiotics. तो ये सब ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग प्रोडक्ट हमको कैसे देते हैं? क्योंकि वो उनके बॉडी के अंदर सेल के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, राइट? ये अलग अलग मेटाबॉलिज्म वो क्यों करवाते हैं? एंजाइम द्वारा सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. तो ये एंजाइम सेल के अंदर कैसे बनते हैं? बाय डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन. So this is how the total life and the different areas are affected by genetic makeup which is present in organism. Okay, so अब हमको बहुत अच्छे से समझ के आगे चलना है, राइट? और एक एक छोटी छोटी चीजों पे एक एक लाइन पे हमको ध्यान देना है. Okay, so please look at the diagram which I have drawn on the board. It is really very nice, reflecting everything which we have discussed, and it will connect the things with which we will discuss. See this diagram. It's not there in your book. I have drawn it for you for better understanding. See, we started with lesson biomolecules. Biomolecules are of organic, inorganic type, which are mainly performing metabolic reactions, right? Structurally important are organic chemical. उसमें हमने 5 important प्रकार देखे: carbohydrate, fats, proteins, DNA, RNA, right? Okay, among DNA, RNA and protein, which is the genetic material, then it is the DNA, right? So हमने Griffith experiment, Avery, MacLeod, McCarthy, right? Hershey-Chase experiment, and ultimately we discussed the DNA, which is acting as a genetic material. Right? DNA का structure और DNA producing DNA autocatalytic activity. We discuss the process of DNA replication. Right? Okay. So यहाँ तक हमने DNA सीखा. फिर DNA जो काम करता है वो काम करने के लिए उसको असिस्टेंट की जरूरत होती है और वो असिस्टेंट है RNA. Okay. So after discussing structure of DNA, please watch this diagram carefully. See, मैंने अलग अलग areas locate किए हैं. DNA पे अलग अलग areas, right? So this area is helping in synthesis of tRNA. This area is also preparing tRNA, right? tRNA are of 21 type at least. Number may be many, लेकिन 21 अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए स्पेसिफिक 21 tRNA होना सेल के अंदर जरूरी है. उसमें से 20 तो होने ही चाहिए, बराबर? तो देखो DNA के पास अलग अलग और रीजन रहेंगे. मैंने एक ही डीएनए ड्रॉ किया. ह्यूमन सेल में 46 डीएनए हैं जो 46 क्रोमोसोम बनाते हैं. तो डीएनए के पास ऐसे अलग अलग एरियाज होंगे जो टीआरएनए बनाएगा, अलग अलग प्रकार के टीआरएनए बनाएगा. उनका नंबर बहुत ज्यादा होगा. सेल साइटोप्लाज्म में वो टीआरएनए घूमते रहेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड कैरी करते रहेंगे. तो हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके आर्म सब देख लिए. तो डीएनए के पास टीआरएनए बनाने का एरिया है. वही डीएनए के पास
न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में आरआरएनए बनाने का भी इंफॉर्मेशन है। सो डीएनए के पास टीआरएनए, आरआरएनए एज वेल एज एमआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है। सो डीएनए के पास काम करने की इंफॉर्मेशन है, राइट? ओके, अब देखो, मेन मैसेज लिख के लेने वाला है एमआरएनए। सो डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए बनाता है, वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बना है, बराबर? तो ये डीएनए के सेगमेंट को हमने बोला सिस्ट्रॉन, विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल मतलब एग्जैक्टली काम करने वाला, एक्चुअल काम करने वाला, बराबर? ये एक्चुअल काम करने वाला एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए के पास एक्चुअल कैरेक्टर रेगुलेट करने की इंफॉर्मेशन होगी। ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड से बना है उसको बनाएगा, बराबर? So the structure, the part of DNA which is preparing mRNA is functional unit of DNA, जिसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। तो ये डीएनए एमआरएनए बनाता है, ये सेगमेंट को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ओके, अब थोड़ा सा याद करो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। डीएनए जब एमआरएनए बनाता है तो जो स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनता है, ओके, उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट, एंटीसेंस, एंड it is not coded, it is not coded, so it is antisense and non-coding strand of DNA. Okay, ये दूसरा है सेंस स्ट्रैंड, बराबर? तो एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उसका प्रोसेसिंग होके ये एमआरएनए यहाँ पे आएगा। ओके, तो प्रोसेस शुरू करने के लिए यहाँ पे है प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, राइट? रेगुलेटर जीन ये बिग बॉस है। ये सब जीन में हमने जीन की डेफिनेशन लिखी। जीन इज एरिया विच हैज इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट अ कैरेक्टर, बट व्हेन वी डिफाइन जीन लूजली, ऐसा शब्द था एनसीईआरटी में, देयर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ डीएनए विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, वो ऑपरेटर पे स्लाइड होगा, राइट? और रेगुलेटर इज द अल्टीमेट वन विच सेज यस और नो। मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है तो इसके लिए सबसे पहले परमिशन कौन देगा? डीएनए का वो पार्ट जिसको हम बोलेंगे रेगुलेटर जीन, राइट? तो देखो, जब जीन की डेफिनेशन हमने की, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेगुलेटिंग अ कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर, और जीन कैन बी लूजली डिफाइंड एज promoter region of the DNA, operator region of the DNA, regulator region of the DNA, right? All these genes work together. देखो, ये जब mRNA बनता है तो इसके लिए परमिशन चाहिए रेगुलेटर की, हेल्प चाहिए ऑपरेटर की, और प्रमोटर को जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ। तो ये सब जीन इकट्ठा काम करते हैं, तब जाके mRNA बनता है। mRNA अगर यूकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म में प्रोसेसिंग करवा के जाएगा, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, राइट? या फिर अगर प्रोकैरियोट है तो उसको कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग की जरूरत नहीं है। सो आफ्टर प्रोसेसिंग द एमआरएनए विल गो इन सेल साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट एंड इट विल प्रिपेयर प्रोटीन, राइट? अब एक्चुअली यहाँ पे और एक शब्द मैंने ऐड किया है, इट इनिशियली प्रिपेयर अ पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? It is made up of many amino acids. It is made up of many amino acids. बराबर? तो हो सकता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड से एक प्रोटीन बने, राइट? एमआरएनए ने एक पॉलीपेप्टाइड बनाई, ये पॉलीपेप्टाइड ने खुद को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, लास्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड विल बी मॉडिफाइड, इट विल coil 2-dimensionally, 3-dimensionally. It may give you primary protein, tertiary protein और quaternary protein. राइट? सो अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड से सेकेंडरी टर्शरी कॉइलिंग से हमको प्रोटीन मिलता है तो वो सिंपल प्रोटीन है, राइट? वो एंजाइम बोल के काम कर सकता है। लेकिन कभी कभी, डायग्राम को ठीक से देखो, राइट? ये एक डीएनए एक एमआरएनए बनाएगा, ये इधर का दूसरा पार्ट दूसरा एमआरएनए बनाएगा, राइट? और ये दो एमआरएनए फ्यू पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, 2-3 एमआरएनए फ्यू पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, 2-3 पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ये ग्रीन वाला पॉलीपेप्टाइड, रेड वाला पॉलीपेप्टाइड, और दोनों पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ कॉइल करके
खुद को मॉडिफाई करके और एक प्रोटीन बनाएंगे। सो व्हाट वी डिस्कस्ड, इनिशियली मैंने आपको क्या बोला था कि एक जीन एक एमआरएनए बनाता है, एक डीएनए का सेगमेंट एक एमआरएनए बनाता है और एक एमआरएनए एक प्रोटीन बनाता है, राइट? ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था। इट इज कॉल्ड वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। ओके, व्हाट वाज इनिशियली कंसिडर्ड बाय साइंटिस्ट, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। डिटेल्स हम रिवीजन में देखेंगे। राइट नाउ यू आर डिस्कसिंग ओनली वर्ड। व्हाट वाज प्रिमिटिव कंसेप्ट इज दैट वन जीन प्रोड्यूसेस वन एंजाइम। It was initial concept, but later on it is modified. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने अलग अलग प्रकार के प्रोटीन देखे, तो पहले हमको ऐसा सिंपल प्रोटीन मिला, बाद में हमको ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन मिला। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फ्यू पॉलीपेप्टाइड से बना था। तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर से, अगर यहाँ पे एक प्रोटीन में 2-4 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड है, तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर से ये प्रोसेस पे ध्यान दिया। तो उनको समझ में आया कि यहाँ का डीएनए एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, देखो एक जीन, राइट, और आई लेबल इट एज ए जीन ए पॉलीपेप्टाइड बनाती है, बराबर? समझ लो यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है और यहाँ पे सी जीन है, बराबर है? तो ये तीनों ने अल्टीमेटली 3 पॉलीपेप्टाइड बनाए, ए जीन, बी जीन और सी जीन। ये तीनों ने 3 पॉलीपेप्टाइड बनाए और ये 3 पॉलीपेप्टाइड जुड़ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना प्रोटीन का। ये 3 पॉलीपेप्टाइड जुड़ के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना प्रोटीन का, राइट? तो यही हाइपोथेसिस मॉडिफाई हुआ, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, राइट? Few gene, few polypeptide. Few gene, few polypeptide which produce one protein. Right? So देखो 1, 2, 3 ABC जीन की वजह से एक प्रोटीन बना और ये एक प्रोटीन एक कैरेक्टर रेगुलेट करेगा when it is an enzyme. ये प्रोटीन क्या करेगा? एंजाइम बोल के काम करेगा और एक कैरेक्टर रेगुलेट करेगा। तो हमारा पहला हाइपोथेसिस क्या था? वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर। तो अब वो मॉडिफाई हो गया, फ्यू जीन फ्यू पॉलीपेप्टाइड, और हियर आई कैन से 3 जीन 3 पॉलीपेप्टाइड 1 प्रोटीन, एंड दिस 1 प्रोटीन रेगुलेट 1 कैरेक्टर, बराबर? तो it is true for some characters, this one enzyme may regulate 1 character. Okay, एक एंजाइम से एक कैरेक्टर रेगुलेट होगा, या 3 जीन से एक प्रोटीन एक एंजाइम बनेगा और उसकी वजह से एक कैरेक्टर रेगुलेट होगा। तो ये 2 हाइपोथेसिस साइंटिस्ट लोगों ने सामने रखे और अल्टीमेटली ये मॉडिफाइड वन एक्सेप्ट हुआ कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड बनाता ही है। ओके, अब एक पॉलीपेप्टाइड से एक एंजाइम बनेगा ये प्रोसेस से, या कभी कभी 3 पॉलीपेप्टाइड से एक प्रोटीन बनेगा, 2 पॉलीपेप्टाइड से एक प्रोटीन बनेगा और 2-3 पॉलीपेप्टाइड 4-5 में बी देयर, राइट, उससे एक प्रोटीन बनके वो एंजाइम बोल के काम करेगा और नेक्स्ट कैरेक्टर एक कैरेक्टर रेगुलेट करेगा। Okay, so this was previous one gene, one enzyme, one character hypothesis. Now it is modified. Few genes, few polypeptide will aggregate to form one protein. One protein will determine one character. Okay, so ये just briefing है। न्यूरोस्पोरा क्रासा पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, बिडल एंड टैटम ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है। सो रिवीजन में ये एक्सपेरिमेंट और इसके बारे में डिटेल्स हम थोड़े देख लेंगे। राइट नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, सो सी, एमआरएनए ने पॉलीपेप्टाइड बनाई, एक या फ्यू, कभी कभी एक पॉलीपेप्टाइड से एक प्रोटीन और एक एंजाइम बना, कभी कभी अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो फ्यू पॉलीपेप्टाइड से एक प्रोटीन बना
और एक प्रोटीन ने एक एंजाइम बोल के करेक्ट काम किया, और ये एंजाइम जो सेल के अंदर बनता है वो सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है. So how it is regulating metabolism? What do you mean by metabolism? See, metabolism include anabolism as well as catabolism. So photosynthesis is an anabolic process. Anabolism में लाइट रिएक्शन होगी, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, डार्क रिएक्शन होगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, रूबिस्को बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन के एंजाइम बनेंगे. तो देखो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम लगते हैं वो क्या है? प्रोटीन्स है, राइट. ये एंजाइम क्या है? प्रोटीन है. प्रोटीन किसने बनाया? एमआरएनए ने. ये एमआरएनए को किसने सिखाया? डीएनए ने. मतलब फोटोसिंथेसिस किसने रेगुलेट किया? डीएनए के एक पार्ट ने, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, राइट. सेम थिंग ट्रू रेस्पिरेशन में. हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अल्डोलेज, इनोलेज, अल्फा कीटोग्लूटारेज, isn't it? Okay, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरेट. याद आ रहे हैं रेस्पिरेशन के नाम? रेस्पिरेशन में कितने एंजाइम सीखे थे हमने? ये पूरे एंजाइम क्या है? ये पूरे एंजाइम क्या है? प्रोटीन से. प्रोटीन किसने बनाया? किससे बने? पॉलीपेप्टाइड से. ये किसने बनाई? एमआरएनए ने. एमआरएनए को किसने सिखाया? डीएनए. मतलब रेस्पिरेशन जैसा कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन करवाता है? डीएनए करता है. एंजाइम द्वारा केमिकल रिएक्शन करवाता है. So like that, it can be DNA, RNA बनाने वाले एंजाइम जो हमने अभी सीखे, हेलिकेज, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, राइट. एसएसबी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन. इतने सारे एंजाइम. और कोई है? वो सब क्या है? ये सब एंजाइम्स है प्रोटीन. तो डीएनए ने खुद को ही रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम भी बनाए, ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी. डीएनए ने आरएनए बनाने वाले एंजाइम बनाए, हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी, बराबर. तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन. थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, राइट. फीमेलाइन हार्मोन है, मेल मस्कुलाइन हार्मोन्स है. ये सब हार्मोन क्यों बने? क्योंकि हार्मोन बनाने वाले एंजाइम्स थे. एंजाइम अल्टीमेटली किसने बनाया? डीएनए ने. मतलब हार्मोन बनाना, ज्यादा बनाना, कम बनाना, राइट. ऑल दैट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ genetic material DNA. DNA is a master molecule of this life. Got it? So these are all regulations, right? Because of metabolic reaction, these chemical changes happen in a cell, and because of this chemical reaction, ultimately what happens is that heritable characters are regulated. मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन हुआ तो प्लांट टॉल बनेगा. प्लांट हार्मोन जिबरलिन बना तो प्लांट टॉल होगा. प्लांट हार्मोन फ्लोर्जिन बना तो फ्लावर बनेगा, राइट. फ्लावर के अंदर कौन से कलर का पिगमेंट बना, उसके अनुसार फ्लावर का कलर डिसाइड होगा. रेड रोज अगर आपके पास है, उसका स्टेम कटिंग लगाते हो तो बेबी प्लांट को भी रेड रोज ही आते हैं. व्हाई? फ्लावर कलर इज अ हेरिटेबल कैरेक्टर. फ्लावर कलर कौन रेगुलेट करता है? उसमें का पिगमेंट. वो पिगमेंट क्यों बना? क्योंकि एंजाइम था. एंजाइम किसने बनाया? डीएनए ने. तो फ्लावर कलर रेड क्यों है, व्हाइट क्यों है, पर्पल क्यों है? इट इज ऑल बिकॉज the plant has that particular gene which regulate pigmentation of the flower, right? So ये heritable characters है. blood group ABO blood group हमारा ह्यूमन बीइंग का, right? then flower color, मेंडल याद करो 10th में सीखा था, रेड फ्लावर कलर, व्हाइट फ्लावर कलर. height of the plant, capital T, small t. Okay, so there are a variety of heritable characters which are regulated because of this enzyme, and enzyme synthesis is regulated because of DNA. ठीक है, अब ठीक से सुनो. देखो, ये एंजाइम की वजह से ये कैरेक्टर दिखते हैं. अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स भी दिखते हैं. इट माइट बी कलर ब्लाइंडनेस, it can be sickle cell anemia, it can be, right, it can be some deficiency syndromes, it can be Downey syndrome, right, and it can be some disease like even heart attack. Okay, some cancers are even genetic. So there are so many genetic disorders which are even regulated by DNA.
ओके, सो देखो, जब हमने ये पूरा एनालाइज किया तो हम एक बात पे, एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि डीएनए कैरेक्टर जो रेगुलेट करता है वो काम के कैरेक्टर होंगे या प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर होंगे. सो अगर इफ द कैरेक्टर्स आर यूजफुल, then those characters are expressed or should be expressed, and it should be expressed in a better way. But if they are problematic characters which are causing disease like sickle cell anemia, it may be diabetes, it may be color blindness, it may be ADA deficiency, it may be thalassemia, right? Okay, so there are a number of genetic disorders. So अगर genetic disorder करने वाला जीन है तो क्या हम उसको साइलेंट कर सकते हैं? क्या हम वो जीन को स्विच ऑफ कर सकते हैं? राइट? देखिए, अब देखो ना, खुद को ही देखो, राइट? जस्ट एनालाइज योरसेल्फ. यू नो, आपने आपके डे 1 के फोटोज देखे होंगे, कैसे थे, क्यूट, राइट? देन यू बिकम अ चब्बी चिक वाला बेबी, हेवी वेट चैंपियन, राइट? क्यूट बेबी, इजंट इट? देन यू स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, सो बेबी थे तो कैसे दिखते थे, बराबर? जैसे ग्रो होने लगे तो कैसे दिखने लगे, ओके? और ग्रो हो गए, कैसे दिखते हो? और बुढ़े होंगे, पता नहीं कैसे दिखेंगे. यू नो दैट इवन ऐप, ओके, जो आपको टोटल ग्रेजुअल चेंजेस आपके रिकॉर्ड करेगा. सो देखो, यू डेवलप योर ओन बॉडी फ्रॉम द सिंगल सेल zygote divide by mitosis, you develop your giant body, multicellular. All the cells are genetically exactly similar, right? आपके पास जब जाइगोट थे तो भी वही जीन थे, बेबी थे तो वही जीन्स है, ग्रो हो रहे तो वही जीन है, बुढ़े हो जाओगे तो भी वही जीन्स है आपके पास. वही जेनेटिक मेकअप रखने के बावजूद, though you are having same genetic material, see the way your phenotype is changing. जो मैंने अभी बोला, बेबी थे कितने क्यूट दिखते थे, अब कैसे दिख रहे हो, बाद में कैसे दिखोगे? Why this phenotype is changing? Get it? जब आप बेबी थे तो आपने बॉडी डेवलप करने के लिए कुछ अलग ग्रुप ऑफ जीन को स्विच ऑन किया. जाइगोट से बॉडी बनी, जाइगोट का माइटोसिस हुआ, सेल डिफरेंशिएशन हुआ, राइट? शायद आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स भी देखे होंगे. आपने कैसे खुद की बॉडी बनाई? तो ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए जो जीन्स आपको लग रहे थे वो आपने वो टाइम स्विच ऑन कर दिए, खुद की बॉडी डेवलप कर ली. नाउ यू आर अ ग्रोन पर्सन, आपकी बॉडी डेवलप हो गई, तो आपने वो जीन्स को स्विच ऑफ कर दिया. हर सेल में वो जीन अभी भी है. एवरी सेल हैज ऑल दो जीन्स, बट यू आर नॉट यूजिंग देम. सो ये जो जीन्स आपके पास है, राइट, वो जीन आपने स्विच ऑफ करके रख दिए. क्यों? यू वांट टू गिव इट टू योर नेक्स्ट जनरेशन सो दैट द सेम इंफॉर्मेशन विल प्रिपेयर देयर ओन बॉडी. लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन के पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आपने वो जीन को स्विच ऑफ करके आपके बॉडी में रखा है. क्यों? यू वांट टू ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन, बराबर? सो ग्रेजुअली, जैसे आप न्यूबॉर्न बेबी थे, ग्रो हो गए, नाउ यू आर ग्रोइंग, टीनेजर, यू आर गेटिंग मैच्योर एट प्यूबर्टी. सो नाउ यू आर डेवलपिंग दोज हार्मोन विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन. देखो, खुद का फिजिक बदल रहा है. ओके, सी बॉयज, यू आर हैविंग जीन फॉर मुस्टैच एंड बियर्ड सिंस यू वेर अ जाइगोट. जाइगोट के पास भी बियर्ड एंड मुस्टैच बनाने के जीन थे, न्यूबॉर्न बेबी के पास भी बियर्ड एंड मुस्टैच बनाने के जीन थे. आपने वो जीन वो टाइम स्विच ऑफ करके रख दिए, राइट? ना न्यूबॉर्न बेबी को मुस्टैच थे, ना आपको थे. लेकिन जैसे आप ग्रो हो रहे हो, जैसे आपके मस्कुलाइन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता गया, वो हार्मोन ने वो जीन को स्विच ऑन कर दिया, एंड नाउ यू स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, सो वो जीन आपके पास पहले से थे स्विच ऑफ कंडीशन में, अभी आपने वो कर दिए स्विच ऑन, एंड बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जस्ट इमेजिन, राइट, अ फीमेल इज प्रेग्नेंट of any animal, her hormonal balance totally changes, right? Why that? During pregnancy उसके बॉडी के और अलग प्रकार के जीन स्विच ऑन होंगे,
वो अलग अलग केमिकल्स बनाएंगे जो बेबी को नर्चर करने के लिए, डेवलप करने के लिए काम करेंगे. Once the baby will be delivered, now she is a lactating mother, right? अब रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि मैच्योरिटी, प्यूबर्टी में कैसे हार्मोनल चेंज होगा, प्रेगनेंसी में कैसे हार्मोनल चेंजेस होंगे, लैक्टेटिंग मदर में कैसे हार्मोनल चेंजेस होंगे. एंड वंस द बेबी इज ग्रोन अप, शी इज आउट ऑफ दैट फेज, शी अगेन एस्टैब्लिश नॉर्मल रूटीन बॉडी केमिस्ट्री. हाउ कम? फिर से उसकी नॉर्मल बॉडी केमिस्ट्री कैसे डेवलप होगी? प्रेगनेंसी के दरमियान, लैक्टेशन के दरमियान जो जीन उसने स्विच ऑन किए थे वो फिर से वो स्विच ऑफ करके रख देगी. एंड माइट बी उसके बाद वो कभी वो जीन यूज भी ना करेगी. आर यू गेटिंग दैट? सो यू आर हैविंग अ सेट ऑफ जीन्स विथ यू. आपके बॉडी में वो जीन्स बचपन से मरने तक वैसे ही है, बस आपका चॉइस है कौन से फेज में कौन से जीन स्विच ऑन करते हो और कौन से फेज में कौन से जीन्स स्विच ऑफ करते हो. राइट? सो जीन्स हैव स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म which is called gene regulation. बराबर? So हमने जब ये पूरा समझ लिया तो as a homo sapien wise human beings what we started using, काम के जीन है तो स्विच ऑन करवाओ, डिजीज कॉजिंग जीन है तो स्विच ऑफ करवाओ. Okay, so the question is, can we regulate genetic disorders by regulating the gene regulation? Are you getting my point? हीमोफीलिया का जीन है आपके पास, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है आपके पास, वो जीन को साइलेंट करवा दो. साइलेंट करवा दो मतलब ये प्रॉब्लमेटिक जीन है, राइट? ये प्रॉब्लमेटिक जीन ना एमआरएनए बनाएगा, राइट? ना एमआरएनए बनाएगा, ना प्रोटीन बनाएगा, ना एंजाइम बनेगा, ना वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. आके गेटिंग मी? राइट? अब देखो, हमने जो जीन एक्सप्रेशन का ये फॉर्मेट देखा, हमने जो जीन एक्सप्रेशन का ये टोटल फॉर्मेट देखा, सो जीन स्विच ऑन हो गया तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनाता है, ट्रांसलेशन द्वारा पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड का प्रोसेसिंग मॉडिफाई होकर प्रोटीन बनता है, राइट? और प्रोटीन पर्टिकुलर कंडीशन में, राइट, प्रोटीन पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर आयंस के प्रेजेंस में, पर्टिकुलर हार्मोन के प्रेजेंस में वो कैरेक्टर रेगुलेट करने की केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करता है, राइट? सो जब हमने ये पूरे डिटेल्स जान लिए तो हमने सोचा कि डीएनए का एक्सप्रेशन हम कहां कहां पे रोक सकते हैं. अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो, और अगर वो काम का जीन है तो हम कहां कहां पे उसका एक्सप्रेशन प्रमोट कर सकते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, देन regulation of gene is one of the very important thing for developing healthy and superior human race. In that situation, we'll try to regulate gene expression. तो डीएनए का एक्सप्रेशन हम ट्रांसक्रिप्शन के पहले रोक सकते हैं, राइट? आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड ही मत होने दो तो एमआरएनए न बनेगा, एमआरएनए बना तो प्रोटीन न बनेगा, ना एंजाइम बनेगा. सो यू कैन स्विच ऑफ द जीन एट प्री ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और एमआरएनए बन गया, राइट? देखो ये डीएनए के स्ट्रैंड पे, सेंस स्ट्रैंड पे एमआरएनए बन गया, बराबर? तो हमने क्या बोला था कि एंटीसेंस स्ट्रैंड पे भी, राइट, ये वेट अ सेकेंड, टेम्पलेट पे एमआरएनए बना, एंटीसेंस पे, तो सेंस पे भी आरएनए बनवाओ. अब ये ब्लू और रेड दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे बना तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन न बनाएगा तो जीन साइलेंट हो गया. इसको हमने क्या बोला था? आरएनए साइलेंसिंग. आपने ये आरएनए को जो टेम्पलेट पे एंटीसेंस पे बना उसको ये दूसरे आरएनए से साइलेंट कर दिया. सो व्हाट यू डिड? You stop the expression of this mRNA at post-transcriptional level. Got it? So gene expression can be before transcription, after transcription, after even translation. ये प्रोटीन बना तो ये प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स दे दो. अगर प्रोटीन फंक्शनल न रहा तो कैरेक्टर रेगुलेट नहीं करेगा. Getting my point, right? So this is all about gene expression. मैंने डायग्राम की ये साइड आपको सिखाई
ये अभी मैंने कुछ न बोला, राइट? So please note, right? Okay, so please draw the diagram carefully, write down the simple tiny things. Okay, I repeat, okay, ये डायग्राम समझने के लिए है, इस पे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं आ सकते. Okay, it's not there in your printed syllabus, it is all based on understanding. It is really a wonderful diagram. ठीक है, चलो तो ये हाफ भी डिस्कस कर लेते हैं. See what happens in this half where I wrote everything by green pen. तो ग्रीन पेन से मैंने जो जो लिखा है, सी जैसे हमने अभी बोला कि डीएनए के पास टीआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए की बनाने की इंफॉर्मेशन है, आरआरएनए की बनाने की इंफॉर्मेशन है, राइट? ये सब मिलके प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, राइट, ये सब मिलके कैरेक्टर रेगुलेट करेंगे. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो इकट्ठा काम करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये पूरे जो रीजन्स है डीएनए के जो इकट्ठा काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑपेरा. Opera is a cluster of genes working together to regulate the character. बराबर? So this is all coded information, काम की information. बराबर? लेकिन अगर आप थोड़ा याद करोगे तो हमने ट्रांसक्रिप्शन के दरम्यान सीखा था that DNA has even junk DNA. डीएनए के पास ऐसा एरिया भी है जो काम की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, राइट? उसको हम शब्द यूज करेंगे जंक डीएनए. जंक डीएनए इज अ पार्ट ऑफ डीएनए which doesn't code for any rRNA, mRNA, tRNA. It doesn't have any information to regulate the character. Okay, अब आपका सवाल ऑब्वियस कि मैम अगर ये कोई एमआरएनए बनाता ही नहीं, कोई आरआरएनए, टीआरएनए बनाता ही नहीं, तो ये डीएनए के पास है क्यों? ओके, ठीक से सुनो बच्चों. सी योर बुक, हमने कितनी बार बोला बुक इज लाइक डीएनए. तो ये डीएनए आपके लाइफ का बुक है. ओके, ये बुक एनसीईआरटी आपके सिलेबस में बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बुक को देखो, इसका फ्रंट पेज है, इसका बैक पेज है, बराबर? इसके मार्जिन है, प्रीफेस है, स्टार्टिंग में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है. ये सब जो चीजें बुक के अंदर है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं क्या? हैव यू एवर सीन अ क्वेश्चन इन नेट? व्हाट इज दैट? What is color of the beetle or the insect shown on 11th NCERT? What is name of that insect? Write down classification of the insect. ऐसे क्वेश्चन आए कभी नहीं, लेकिन आपके फ्रंट पेज पे वो बीटल है, वो इंसेक्ट है. Are you getting my point? So देखो, आपके बुक का फ्रंट पेज और बैक पेज, आपके बुक का फ्रंट पेज और बैक पेज, ओके, उसमें क्या है? What it signifies? It is protecting the book. याद है मैंने जब सेंस एंटीसेंस प्लांट आपको सिखाया तो मैंने बोला था आपका ड्राइंग का बुक जिसपे डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट, बीच में बटर पेपर, डायग्राम, बटर पेपर डायग्राम वाले पेपर को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही आपके बुक का फ्रंट पेज, बैक पेज या आपके बुक को प्रोटेक्ट करता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वैसे बोला जाए तो वो जंक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. लाइक दैट डीएनए के पास जंक डीएनए है फॉर प्रोटेक्शन, राइट? सो ये जो जंक डीएनए है इसको भी हमने क्लासिफाई किया है. द जंक डीएनए में बी ऑफ restriction fragment length polymorph, okay, RFLPs. It can be single nucleotide polymorph, SNPs, or it may be VNTRS, variable number tandem repeats. Okay, अब ये जो शब्द है ये बड़े मीनिंगफुल है. वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स मतलब एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिपीटेडली आता है. AAGGTTC, AAGGTTC, AAGGTTC 100 बार. तो AAGGTTC ये एक टेंडम है वेरिएबल नंबर का, ये एक टेंडम है, वो वेरिएबल नंबर में रिपीट होगा.
वेरिएबल, नंबर, टेंडम, रिपीट। AAGGTTC वाला ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये रिपीटेडली डीएनए पे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे रहेगा। ओके, तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, राइट। So there are two more words, macro satellites, mini satellites. Okay, so all this terminology we'll discuss in third half of this lesson. Now we are working with page number 115, that is regulation of gene expression. Yeah, everyone take out NCERT. I'm relating everything with the content given in NCERT. Got the point? Yeah, take out. See. Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. ये जीन का एक्सप्रेशन अलग अलग पॉइंट पे रेगुलेट होगा। ये ब्रॉड टर्म है जीन रेगुलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन के पहले, बाद में, ट्रांसलेशन के बाद अलग अलग जगह रेगुलेट कर सकता है। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जब भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इफ वी कंसिडर दैट जीन इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोड्यूसिंग पॉलीपेप्टाइड, considering that gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels. जीन का एक्सप्रेशन पॉलीपेप्टाइड से अगर रिलेटेड है तो हम उसको अलग अलग लोकेशन पे रेगुलेट कर सकते हैं। इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, रेगुलेशन कहाँ पे होगा? देखो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं, यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल, एमआरएनए बन गया, उसका कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग करवाना है कि नहीं, राइट। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वो एमआरएनए न्यूक्लियस में बन गया, न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा, रोक दो, जाने मत दो। तो अगर वो साइटोप्लाज्म में गया नहीं तो राइबोसोम टीआरएनए से मिलेगा नहीं, तो प्रोटीन बनाएगा नहीं। ट्रांसलेशन लेवल, या फिर सब बाहर गए, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू भी हो गया, तो उसको इनहिबिट कर दो राइबोसोम को जुड़ने मत दो। ओके, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम को काम मत करने दो, राइट। इनिशिएशन फैक्टर को इनहिबिट कर दो। सो स्टॉप इट एट दैट लेवल। सो यूकैरियोट में इतने लेवल पे हम जीन एक्सप्रेशन रोक सकते हैं। The gene in a cell can express to perform a particular function or a set of functions. एक जीन एक काम करेगा या कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अंडरलाइन, एंजाइम का नाम है बायोटेक, ये लेसन में हम ये डिटेल में सीखेंगे। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डाइसैकेराइड मतलब एक मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड को जोड़ के जो बनता है वो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को तोड़ने में बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose to galactose and glucose. Okay, ये लैक्टोज है, इसको दो टुकड़ों में गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने का काम गैलेक्टोसाइडेज करेगा E. coli सेल के अंदर। The bacteria use them as a source of energy. डायसैकेराइड को तोड़ के दोनों को रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी बनवाएगा। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. See, E. coli है, E. coli को अगर एनर्जी सोर्स बोल के आपने लैक्टोज दिया तो वो गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अगर E. coli को आपने लैक्टोज ही नहीं दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। Are you getting that? So, if the gene is required to be expressed, then only it will express. If it is unnecessarily producing the enzyme, it is of no use. So gene regulation is there. Okay. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. Therefore, in simple term, it is metabolic
physiological or environmental conditions that regulate the expression of gene. जीन एक्सप्रेशन अल्टीमेटली हमको ये पूरा एरिया बताता है, बराबर। तो देखो, अगर हम फ्लावर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर फोटो पीरियड या वर्नलाइजेशन का ट्रीटमेंट मिलने के बाद स्टिम्युलस मिलेगा, वो स्टिम्युलस की वजह से जीन स्विच ऑन होगा और जीन स्विच ऑन होने के बाद फ्लोरोजिन बनेगा। तो जीन का स्विच ऑन स्विच ऑफ ये एनवायरमेंटल कंडीशन में भी डिपेंड करता है। ई कोलाई को लैक्टोज दिया तो लैक्टोज डाइजेशन के एंजाइम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, राइट। प्लांट को यहाँ पे अगर राइट जिबरलिन की अगर हमने बात की तो जिबरलिन प्लांट को सिर्फ टॉल बनाता है, लेकिन जिबरलिन की वजह से डीएनए पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। ओके, बात को समझ रहे हो ना। तो मैंने दोनों एग्जांपल दिए, फोटो पीरियड वर्नलाइजेशन जो स्टिम्युलस है वो जो डायरेक्टली डीएनए को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन जिबरलिन ऐसा कोई काम नहीं करता। जिबरलिन सिर्फ प्लांट को टॉल बनाता है सेल डिवीजन प्रमोट करके। अंडरस्टूड? इट इज लोकलाइज्ड, क्लियर। तो ये पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, एज पे डिपेंडेंट है, डाइट पे डिपेंडेंट है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, ओके, राइट। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस है। सो जीन का एक्सप्रेशन ये मल्टीपल फैक्टर से रेगुलेट होगा। The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of gene. यही तो मैंने example दिया। You were a zygote in your mama's uterus, then you grow embryo, then you grow a fetus, then a newborn baby, infant, okay, then a baby, then a kid. ये sequential event आपके लाइफ में क्यों हुए? क्योंकि आपके अलग अलग जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ होते गए। So this is a sequential event, right, which is ultimately regulated by genes. In prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. Prokaryote में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करना और उसका रेट, ये दो मेन फैक्टर है जो कैरेक्टर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट है। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins. Okay, ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा तो उसके लिए जो जो एंजाइम चाहिए, जो जो प्रोटीन चाहिए, वो अगर है तो ये प्रोसेस इनिशिएट होगा। These regulatory proteins can act both positively and negatively. एक केमिकल, एक प्रोटीन आया इसलिए जीन स्विच ऑन हुआ, राइट, ओके, पॉजिटिव फीडबैक। एक प्रोटीन आया इसलिए जीन स्विच ऑफ हुआ, नेगेटिव। सो इट कैन बी जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक से शुरू होगा। ओके, अब देखो, व्हाट इज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड अ नेगेटिव फीडबैक? व्हाटएवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू द सेम थिंग इज पॉजिटिव फीडबैक। एक जीन है वो काम कर रहा है, उसको स्टिम्युलस आया वो और जोर से काम करना लगा, इट्स पॉजिटिव फीडबैक। एक जीन है जो काम कर रहा है, फीडबैक आया और उसने एक्सप्रेशन बंद कर दिया, नेगेटिव फीडबैक। जो चल रहा है चलने दो, जोर से चलाओ, पॉजिटिव फीडबैक। जो चल रहा है रोक दो, इज नेगेटिव फीडबैक, क्लियर। सो जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। This regulatory protein can both act positively, activators, and negatively, repressors. The accessibility of promoter region to the prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed as operator. Okay, regulator का काम करवाना ये ऑपरेटर के सपोर्ट पे डिपेंड करता है, सिंपल भाषा में। This operator region is adjacent to the promoter element in most opera, and in most cases the sequence of the operator binds a repressor protein. Okay, ये रेगुलेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन, ये प्रमोटर जीन, ये आजू बाजू रहते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कैसे, ये नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया है, we'll see in next lecture.
The operator region is adjacent to the promoter element in most operas, and in most cases the sequence of operator bind to a repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. हर ऑपेरा को एक स्पेसिफिक रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर होता है और एक स्पेसिफिक स्टिमुलस भी होता है. Each opera has specific operator and specific repressor. For example, lac opera is present only in lac operator is present only in lac operon, and it interacts specifically with lac repressor only. कुछ नहीं समझा, I know. Okay, so ये लास्ट के 4 लाइन, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोसेस समझने के बाद बहुत अच्छे से समझा दूंगी. Okay, right now you just think about how the complex body of Homo sapiens is having variety of organ systems, right? Then control and coordination, and so many metabolic reactions are occurring within the same body. So सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में अलग एंजाइम काम कर रहे, ईआर में अलग एंजाइम काम कर रहे, राइट? डाइजेशन में स्टमक में अलग एंजाइम है, आगे जाओगे तो अलग एंजाइम है. स्टमक के एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं, आगे के एंजाइम बेसिक पीएच में काम करवाते हैं, राइट? ओके, यहाँ से थायराइड बना, थायरोक्सिन स्टिमुलस बना, यहाँ पे गया थायराइड बना, वहां पे कंट्रोल कैसे करेगा, वो जाके लॉन्ग बोन को इलोंगेट करेगा. So how this complicated mechanism in Homo sapiens is under control of genes, right? So just think about it. Next lecture we'll discuss lac opera.